لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ ISPR کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد شواہد بھی سامنے آئے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف دائر ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کورٹ آف انکوائری کی۔ انکوائری کے بعد جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف مناسب تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر DG ISPR پہلے بھی واضح بیان دے چکے۔ فیض حمید کے خلاف شفاف انکوائری ہوگی۔ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں ملوث رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فیض حمید ایسے معاملات سے باز آنے والے نہیں تھے۔ 9 مئی واقعات میں فیض حمید کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ 9 مئی میں مداخلت کی بات درست ہے تو اکیلے فیض حمید کا کام نہیں ہوگا، یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ 2013 میں شروع ہونے والی سازشوں میں یہی لوگ ملوث رہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت فیض حمید نے نون لیگ سے رابطہ کر کے کہا میرے سر پر ہاتھ رکھیں، ان باتوں پر حلف دینے کو تیار ہوں۔ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کی تعیناتی کا کہا، نام واپس لیتے ہوئے کہا نہ آپ کا نہ ہمارا بندہ کسی اور کا لگا دیں۔ فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، فوج کے اندر اپنا ایک سٹرکچر ہے۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے حوالے سے گفتگو، کہا وہ جس کے ساتھ جیسا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا، نہ بانی PTI نے کبھی ایسی کوئی بات کی۔ فوج نے سینئر بندے کا کورٹ مارشل شروع کیا ہے تو کوئی سخت جرم ہوگا۔ فیض حمید کے خلاف مس کنڈکٹ کے تحت کارروائی ہوئی۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کہتے ہیں یہ تاثر درست نہیں کہ فوج نے یہ کسی کو پیغام دیا، تفصیلات آنے کے بعد پتہ چلے گا فیض حمید کے خلاف کیا ثبوت ملے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کا پابند کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم، دوبارہ گنتی میں کامیاب ترین لیگی MNA بحال، لیگی رہنماؤں کی اپیلیں منظور۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی میں دیا گیا فیصلہ بحال کر دیا۔ نون لیگ کے عبدالرحمان کانجو، اظہر قیوم ناہر، ذوالفقار احمد اور رانا محمد ارشد کامیاب قرار۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری۔ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل احمد عباسی بھی شامل۔ فیصلہ 2-1 کے تناسب سے سنایا گیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ NA 156 لودھراں، NA 81 اور NA 79 گجرانوالہ میں اعتراضات کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے PPP 133 ننکانہ صاحب رانا محمد ارشد کو بھی بحال کر دیا۔ ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، MNA صاحبان نے اوت لے لیے تھے۔ اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتے ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا نون لیگ کے MNAs کی بحالی کا فیصلہ درست نہیں، ہمارے MNAs کو اٹھایا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا ہماری سیٹیں دوبارہ گنتی کی آڑ میں چھینی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید تحفظات ہیں۔ سپریم کورٹ کو فیصلہ دینے سے پہلے الیکشن کمیشن کا کردار دیکھنا چاہیے۔ نئی چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جلد کیا جائے۔ شبلی فراز نے کہا ان لوگوں کی نظر میں پاکستان کے عوام کی کوئی حیثیت نہیں، الیکشن کے نتائج جان بوجھ کر تاخیر کا شکار کیے گئے۔ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے ججز کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو۔ 60 کے قریب دوبارہ گنتی کی درخواستیں دیں، ہماری درخواستوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ اور عزت کا مستحق۔ سپریم کورٹ کے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے کیس میں ریمارکس، کہا ججز نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور اراکین سے متعلق غیر ضروری ریمارکس دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ الیکشن کمشنر اور
अरकान एहतराम के हकदार। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हर आईनी इदारा और आईनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इजाफा तब होता है जब वो एहतराम के दायरे में फराइज सर अंजाम दे। तस्लीम शुदा हकीकत है 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया, इस वक्त पे ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट में सेक्शन 95 की झेली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। वोटों की दोबारा गिनती बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसले में जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट। कहा, इनके मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। मुतासरा फरीक़ैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायर दर इख्तियार से तजावुज़। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इक़दाम का जायजा लेने के लिए बाख्तियार। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़े होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईन और कानूनी सकम नहीं। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर एहतजाज का ऐलान। पार्टी को तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अगर मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी तो हम एहतजाज करेंगे। कभी पार्टी को तहरीक का नहीं कहा। 9 मई से कबल भी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया तो मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का कहूंगा। इन्हें जब मालूम होता है कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट से राबते हैं तो इनकी कान पे टांग जाती हैं। हालांकि मेरा किसी से कोई राबता है ना कोई बातचीत। फौज का अपना निजाम और तरीक़ाकार है। तहकीकात के बाद ही जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को तहवील में लिया होगा। अतातारा ने कहा कि एक जमात ने फैज हमीद को अपना रूहानी पेशवा माना हुआ था। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब सियासी मुदाखलत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये बात साबित हो चुकी है। फौज में एहतसाब का अमल मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से साबित हो रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, फैज हमीद अपनी जात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया, जजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। तहकीकात होंगी तो इसके असरात सियासी मामलात पर भी होंगे। बानी पीटीआई से बात के बगैर मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। 9 मई को पुलिस कहीं नजर नहीं आई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोनिस इलाही की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने के लिए इंतखाबी निशान लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने एक्सटेंशन बचाने की कोशिश में हैं। परवेज इलाही मुकम्मल सेहतियाब होते ही अमली सियासत का दोबारा आगाज करेंगे। मुझे बानी पीटीआई ने वतन वापसी से रोक रखा है। अल्लाह करे मुल्क के हालात अच्छे हों और जल्द वतन वापसी हो। किसी दिन कुछ भी हो सकता है। लोग बाहर निकल आए तो हम आवाम के साथ होंगे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी मुकदमे के तहत कोर्ट मार्शल का आगाज। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के मालिक मुइज़ अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त के मुताबिक 12 मई 2017 को इन्हें अहले खाना समेत अगवा किया गया। साबिक DG ISI फैज हमीद की ईमा पर टॉप सिटी के हेड ऑफिस G11 मरकज पर छापा मारा गया। जमीन के रजिस्ट्रियां, कैश, सोना और दीगर कीमती दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। मुइज़ अहमद खान ने दरखास्त में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत कई साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 नवंबर 2023 को फैज हमीद के खिलाफ मुइज़ अहमद की दरखास्त का फैसला महफूज किया। 14 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के म्यार पर पूरा ना उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त निपटाते कहा, दरखास्त गुजार के पास दूसरे मुतल्लिका फॉरम्स मौजूद। फैसले में करार दिया, साबिक DG ISI पर आयद इल्जामात संजीदा, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुइज़ अहमद की दरखास्त पर पाक फौज ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। 2 मेजर जनरल और 1 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान फौजी अदालत के रुकन होंगे। पाक फौज के
जर्नल हेडक्वार्टर्स की AG ब्रांच के सरबराह फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के सरबराह की तकर्री के मजाज बाज़ाब्ता मंजूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ली जाएगी। आर्मी की जेक ब्रांच फील्ड कोर्ट मार्शल में रिटायर्ड जर्नल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट और इंक्वायरी का चालान पेश करने की पाबंद। फौज की तहकीकाती रिपोर्ट पर मबनी चार्जशीट फील्ड कोर्ट मार्शल में पेश की जाएगी। साबिक जर्नल रिटायर्ड फैज हमीद पर फौज की जानिब से फर्द जुर्म आयद की गई जाएगी। ISI के साबिक सरबराह को अपना वकील मुकर्रर करने की इजाजत भी मिल सकती है। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस खत्म करते हुए नैब हुक्काम को वापस कर दिया। नैब हुक्काम की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा ये रेफरेंस वापस लेते हैं। नैब सिर्फ एक गवाह को लेकर आया। सियासी लोगों पर मुकदमात बनाए जाते हैं। मैं भी ये मुकदमा भुगतता रहा। आज हमारे लिए खुशी का दिन होना चाहिए। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम इसके साथ हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट और नेशनल वॉलंटियर कोर का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। नौजवान ही मुल्क और कौम की तकदीर बदल सकते हैं। रवा साल 10 लाख बच्चों को मेरिट पर स्मार्टफोन्स देंगे। AI सबसे जदीद हथियार। ख्वाहिश है बतौर खादिम आला आपकी खिदमत करता रहूं। नौजवानों को मौका दिया तो ये खुशहाली का सैलाब ले आएंगे और सितारों पर कमान डालेंगे। माजी में झांक कर रोने के बजाय आगे बढ़ना होगा। मुश्किल जरूर है, 77 साल गुजर गए, वसाइल की कमी ना पहले थी और ना आज। शहबाज शरीफ ने तकरीब में अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाई। वज़ीर आज़म का 14 अगस्त को 5 साल माशी प्लान भी पेश करने का ऐलान। भारत में अक़लियतों को हुकूक हासिल नहीं। मोदी हुकूमत अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। इसी वजह से कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के दिन की मुनासबत से मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा, 1971 में तकसीम होने के बाद हम किसी और की जंग का हिस्सा बने जिससे रियासत को नुकसान पहुंचा। हमारी गलती से हमें पड़ोसी मुल्कों की जंग में धकेला गया। गजा पर मिसाइल गिराने वाले ये नहीं देख रहे मुसलमान हैं या नहीं। पाकिस्तान के साथ जो हुआ इसके हम आईनी गवाह। हमें कमजोर किया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त। इत्तेहादी आमने सामने। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध की तब्दीली की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी। कहा, नून लीग के गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ही रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं PPP से मुशावरत जारी। चंद रोज में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। इसहाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। बदलती सूरत हाल के पेश नजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी को पार्टनरशिप की पेशकश। कहा, सिंध हुकूमत इन्हें दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज हक दे तो पीपल्स पार्टी के पार्टनर बन सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद मुज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क को तरक्की और आवाम की खुशहाली की राह पर डालेंगे। रुकावटें डालने वालों की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की जरूरत है। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोपहमा मुराद सतपारा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बहा। कल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी की तस्दीक। सतकर्दू में मुराद सतपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिमजोई के दौरान जख्मी हुए थे। पाक आर्मी की मदद से दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में मजीद 2 मेंबरान शामिल। रेस्क्यू टीम मेंबरान को हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रॉड पीक पहुंचाया गया। 4 क्लाइंबर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। मुराद सतपारा को बेस कैंप लाने की कोशिशें जारी। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च,
زہریلی تقریریں تھیں. کیا حسان نیازی جو ہے وہ عمران خان کا بھانجا نہیں ہے؟ کیا یاسمین راشد جو ہے وہ بلوا کرانے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں گئی تھی؟ 9 مئی کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے 70 جلسے، 2 لانگ مارچ اور زہریلی تقریر تھی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ویڈیوز اور بیانات بھی موجود، سمجھ نہیں آتی 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا حسان نیازی، یاسمین راشد اور دیگر پی ٹی آئی کے نہیں تھے؟ کیا محض اتفاق تھا؟ مظاہرین ہر شہر میں فوجی تنصیبات تک پہنچ گئے. یہ لوگ عدالتی ہتھوڑے سے انصاف کے عمل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. مینڈیٹ چور ٹولہ صرف ٹک ٹاک اور گانے بنانے میں مصروف ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی سرکار صرف پٹواریوں اور تھانے داروں کے تبادلے میں مصروف ہے. لاہور کے اسپتالوں میں مریض رل رہے ہیں. جعلی ارستو جس کے مسلط ہونے کا کہہ رہا ہے، اس کے ویژن پر عوامی منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا. 1 لاکھ مستحق خاندانوں کو شمسی بجلی فراہم کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پر مفت علاج اور ادویات دیے جا رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری کی جنڈ میں لیفٹیننٹ عزیز شہید کی گھر پر آمد. اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت. پاک فوج کے بہادر سپوت لیفٹیننٹ عزیر شہید نے دہشت گردوں کے مقابلے میں جام شہادت نوش کیا. وادی تیرا میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک.